बाद जानवी बनाम एचएस स्पोर्ट, उसके बाद सबसे बड़ा मुकाबला सहारा इंडियंस बनाम मैगी और आखिर में मयूरेश और गौसिया स्पोर्ट। मोइन तनवीर को आप देख रहे हैं, उस्मानिया के एक्स क्रिकेटर। ये निकेश पाटिल, वीरेंद्र चोरगे और जीतू मानेरकर। Back to cricket now, end of the third over. Still no clear picture so far of this match. Neck to net fight, cut to cut match you are watching. You are watching Cricket Endless Deputy Mayor Cup 2017. Welcome everybody, wherever you are from. Ahmed Siddiqui, Deputy Mayor, Ahmed Siddiqui, and Ahmed Sports. Suraj continue. First ball is hard and high. There is the fielder. Yes, finally taken. I think there is a way. बैट्समैन ऑन इस वे। क्या लगता है क्या हुआ होगा जब उनको गेंद नहीं दिखी थी वहां पर? मेरे रश के कमर, ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत आवाज में कहा गया है। ये देखिए किस तरह से विकेट गिरा, बहुत बढ़िया कैमरा वर्क, आखिर में अच्छा जज किया उन्होंने। और किसी का चेहरा अगर रश के कमर हो तो फिर उसे एहतियात बरतना चाहिए कि लग ना जाए कहीं बेताब सितारों की नजर, चांद से चेहरे को आंचल में छुपाकर सोना। बैक टू क्रिकेट नाउ, 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अच्छा कैच लिया लॉन्ग ऑन पर परेश महाजन ने। So Suraj finally claimed the wicket, the wicket taker bowler, the captain of Balaji. 29 for the loss of 3 wicket. New batsman in, Jaish. Here goes Suraj. This time leaving edge in the air. Yes, he's out. Soft dismissal. And I think last one was a Chinaman from Suraj. Maybe it is going to be very interesting to see. Was Chinaman. What a bowling, what a bowling, what a clever bowling from Suraj Joshi. Last one was a Chinaman, thick leaving edge, and no mistake made by fielder Somnath in covers. So Suraj on a trick now. Batsman Ahmed did not read that it was a Chinaman. He was playing towards the onside, closes the face of the bat too early. And if Suraj claimed the hat-trick, he gets 1,000 rupees from Javed Farooqi. And upcoming the 5th bowler in this tournament. What a bowling from captain. Here he go. This time survives the hat-trick and chance of run out, need a direct hit. Well back up from Somnath. Finally batsman gets one. A very risky run there for the batsman. Jayesh gets off the mark with that cheeky single. Usmania Sports in spot of bother now. They have lost 4 important wickets. 30 runs, loss of 4 wickets. Still 33 runs to get. What a match. Imtiaz Papa, the golden arms of Bhiwandi. All the best for Usmania. New batsman in, Saif. Saif Sheikh. Saif Ansari, son of Nafis. This time goes his back foot, cuts the ball close from his body. And what a excellent work done by in fielding do by Somnath. Absolutely, he's giving his 100% in the field. Batted so well, scored 22 valuable runs, top of the order, and now couple of catches in this innings. Yes, 31 for the loss of 4 wickets so far. Once more the focus man is
Balaji's captain Suraj. He made 25 runs, claimed 2 important wickets. 3 important wickets. Pull and powerful. 6 runs. What a shot. Suraj dropping shot, goes his back foot and pulls it. From Jayesh. It was too short from Suraj Joshi. Have a look at that. Yes, dropping a shot. He took his position and pulls it. Welcome Salim Ansari. And here goes Suraj. This time check his stroke. Nice looking stroke past the extra cover. Well area covered from Aftab, but enough time batsman gets to. It's still neck to net fight going on. You are watching one of the tough encounter, close photo finish match between Balaji and Osmania. That marks end of the 4th over. Exactly 39 for the loss of 4 wickets. 2 overs are left and from here 24 needing to victory. क्या मुकाबला हो रहा है? 24 चाहिए. ये देखिए गफ्फार को, ये देखिए मोइन को. मैं मोइन के बारे में बताता चलो अजय गरत के अचानक के सामने उन्होंने चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे जो गोल्डन 6 लगा था और उसके बाद जो दूसरा टूर्नामेंट चैलेंज का आया था उसमें वो एड में थे. इट्स अ गोल्डन 6. बहुत अच्छी. 18 गेंदों में 24 रन. कमाल का मैच हो रहा है. नहीं, मूड तो खुशगवार सबका हुआ होगा, देखने वालों का भी, क्योंकि मुकाबले ही वैसे हो रहे. गेंदबाजी के लिए आफ्ताब, और आफ्ताब आबोताब से चमकता हुआ. आफ्ताब के माने भी सूरज होते हैं. सूरज जोशी गए तो आफ्ताब आए, लेकिन सूरज थोड़े महंगे साबित हुए. आज 21 रन जरूर खर्च किए, 3 विकेटें जरूर ली, क्योंकि 4 विकेटें गिरी. अब आप जब विकेट लेते हैं तो बल्लेबाजी पे दबाव आता है. आफ्ताब, ये ओवर फैसला कौन ओवर, जबकि यासिर शेख हमसे जुड़ते हुए कल बहुत तेज गेंदें की थी उन्होंने, बल्लेबाजों के सीने के करीब गेंदों को रखा था. आफ्ताब, बहुत अच्छी गेंद, चाइनीज कट लगा, लेकिन सुफियान ने रोक लिया गेंद को. 3 रन बचा लिए. झुक गए थे, उनको पता था अगर वो नहीं झुकेंगे तो टीम झुकेंगी. बहुत अच्छा क्षेत्ररक्षण, निश्चित रूप से बाउंड्री बचाई वहां पर. पीछे की तरफ बहुत तेजी से जाती है गेंद, अंदरूनी सिरा लगा था बल्ले का. यस, जिसे क्रिकेट में कई नाम दिए गए, चाइनीज लीमन कट और फ्रेंच कट भी कहते हैं कुछ कमेंटेटर्स. हाँ, बालों में फ्रेंच कट अच्छी लगती है, लेकिन क्रिकेट में नहीं. हालांकि ये स्ट्रोक कभी कभी बहुत रन्स दे जाते हैं बल्लेबाज को. नहीं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब अगर इस तरह के स्ट्रोक से गेंद पीछे चली जाए, कोई रहता नहीं, बाउंड्री गई, तो फिर वो टीम का कैप्टन जो टीम हारती है अपने बालों में कभी भी फ्रेंच कट या चाइनीज कट नहीं करेगा. अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका. आफ्ताब लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, इस मरतबा पहले ही आगे निकल गए थे. डीप फाइन लेग पर अब जाके परेश ने गेंद को उठाया है. सुफियान क्या सोचकर अपने दाईं ओर भागे थे, जबकि बहुत ही फाइन ग्लांस किया था. जी हाँ, पूर्वानुमान थोड़ा सा गलत था वहां पर, लेकिन पूर्वानुमान बहुत अच्छा था लॉन्ग लेग खिलाड़ी का. परेश महाजन ने फील किया था. आज हमें कई मैसेजेस आ रहे हैं कि प्रिंस मूवीज का टेलीकास्ट लाजवाब. सोने पे सुहागा, दिन में दुगनी और रात में चौगनी. देखेंगे अब बाली में रात में. इस मरतबा ड्राइव किया सीधे प्लेट से, लेकिन लॉन्ग ऑफ थोड़ा स्ट्रेटर था, कोई गलती नहीं की, आउट हो गए बैट्समैन. पीछे बैकग्राउंड में शकील कोटी नजर आ रहे हैं, डीजे मैन सुमित. ये देखिए कौन बनाती हुई गेंद को, जो नेचुरल स्विंग है, अगेंस्ट दी स्विंग खेला आपने, लेकिन लॉन्ग ऑफ थोड़ा स्ट्रेटर था, वो जाल में फंस गए बैट्समैन.
ये अच्छी सोच वहां पर कैप्टन सूरज जोशी की, लॉन्ग ऑफ को सीधा रखा था। जानते हैं कि बैट्समैन ज्यादातर ऑन साइड में खेलने की कोशिश करते हैं, कोन बनता है तो फिर लीडिंग एज भी थोड़ा सा लगता है तो सामने की तरफ गेंद जाने की संभावना है। मिस टाइम कर बैठे थे अपने स्ट्रोक को, सेफ 2 रन बनाकर आउट हुए। 9 गेंदें अब बची है और 22 रन चाहिए। 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं उस्मानिया के। नहीं, मैच अभी भी बराबरी पे है, क्योंकि अभी भी 2 अच्छे बैट्समैन हैं, नए बैट्समैन आसिफ हैं, लेकिन आमिर कप्तान क्यों बल्लेबाजी को नहीं आ रहे? वो तो बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं। आफ्ताब की गेंद, बैट्समैन देखना है क्या कुछ हुआ है। रन तो पूरा कर रहे हैं बैट्समैन 2, और बीमर इसीलिए घोषित नहीं किया क्योंकि बैट्समैन फ्रंट फुट पे थे, बैट्समैन कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर अपनी जगह पे रहते तो शायद ये बेनिफिट मिल जाता। अंपायर का निर्णय अंतिम। दिया है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, कोई मौका नहीं। बढ़िया स्ट्रोक पैरों के सामने खेलते हुए ऑफ वॉली पे। कोशिश की थी फील्डर ने, कैप्टन थे वहां पर सूरज जोशी, लेकिन मौका नहीं था। सुजीत पाटिल भी आए थे। दोनों खिलाड़ियों को चिरती हुई गेंद, ये देखिए पूरी ताकत झोंक दी थी स्ट्रोक में। प्लेसमेंट अच्छा वहां पर। 47 रन हो चुके हैं। सात गेंदें और 17 रन। 7 गेंदों में अब 17 रन चाहिए। 47 रन हो चुके हैं। 7 गेंदों में कितने चाहिए? 16 रन। एक गेंद है, ये गेंद ये अब कीमती हो चुकी। अक्सर हमने देखा है 5वें ओवर की आखिरी गेंद बहुत कीमती रही है डेप्यूटी मेयर में। आफ्ताब इस मरतबा पैरों पे निशाना, बैकलिफ को नीचा किया, टर्न कर दिया ऑन साइड में। खराब फील्डिंग वहां पर, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। अब 1 ओवर और डू और डाई की सिचुएशन, 14 रन चाहिए। अजय घरत डेप्यूटी मेयर नहीं बल्कि पूरे सीजन में हम देख रहे हैं सिटी क्रिकेट का जो घमसान है वो वाकई में बहुत ही क्लोज फोटो फिनिश मैच पर है। जी बिल्कुल, एक और नेल बैटिंग फिनिश यहाँ पर। 14 रनों की जरूरत आखिरी ओवर में। दोनों टीमों के पास अवसर है मैच को जीतने के। जीतू मानेरकर भी वहां पर गहरी सोच में। ये देखिए मानेरकर भी अभी भी खुश नहीं है क्योंकि क्रिकेट है, लेकिन बहुत ही गुर्दे जिगर के कोच हैं। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर बहुत अच्छा शॉट खेला था जयेश ने। जयेश बहुत आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए इस समय वही सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी नजर आ रहे हैं मुझे तो उस्मानिया के लिए। 6 गेंदें और 14 रन। बहुत बड़ा मिडल कॉन्फ्रेंस हो रहा है कि गेंदबाजी किसको दी जाए, और गेंदबाजी दी जा रही है सुजीत नहीं, सुजीत को नहीं दे रहे हैं, अक्षय को बुलाया गया है। क्या लगता है अजय घरत ये परिवर्तन सही है? जबकि सुजीत पाटिल बहुत ही अनुभवी गेंदबाज थे, लेग कटर का अच्छा मिश्रण भी करते थे। इस समय विक्की म्हात्रे ने ऑल द बेस्ट कहा है बालाजी स्पोर्ट्स को, सूरज जोशी को। अब ये तो हम मैच के बाद ही बता पाएंगे कि क्या निर्णय सही है या नहीं, लेकिन उनके पास विकल्प बहुत है। अक्षय थेटे भी है, सुजीत पाटिल भी है और ये अक्षय भी है। मेरे ख्याल से दाएं हाथ के बैट्समैन बल्लेबाजी कर रहे हैं, यही कारण है कि बाएं हाथ के गेंदबाज को बुलाया है। ये भी दाएं हाथ के गेंदबाज है। बहरहाल कप्तान बेहतर जानते कि स्थितियां क्या है। यस, सुजीत उनको समझा रहे कि क्या करना है।
4 मिनट बचे आपके ओवर के लिए। 6 गेंदे 14 रन, लेकिन रंग भर दिया इस मैच ने। आज सुबह के हाइलाइट्स को हम देखें तो सुखदेव के 41 रन, विशाल पाटिल की धमाकेदार बल्लेबाजी, बिलाल शेख का 0 पे आउट होना। अक्षय पहली गेंद आगे रखा था, ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑन पे, परेश थ्रम्बल करते हुए, लेकिन सिर्फ 1 रन। अच्छी गेंद थी, आगे रखा था वहां पर। अब ये अक्षय को भी देखिए, ऐसा लग रहा है मुझे कि श्रीलंका के जो मारूफ गेंदबाज थे उनकी याद ताजा होती हुई। परवेज मारूफ। थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ था, लेकिन शायद जयेश अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं, वो सेट बैट्समैन है। परवेज मारूफ से मिलता जुलता बॉलिंग एक्शन है उनका। अक्षय राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, पटकी भी गेंद, शॉट सही नहीं खेला, बल्ला पहले ही के खेल बैठे थे वहां पर। अच्छी गेंद, अच्छा आर्म आ रहा है उनका, क्योंकि उनका जो बॉलिंग एक्शन है आर्म का हाई बैक आर्म है, और जब ऊपर से गेंद आती है तो टिप्पा खाने के बाद अनुमान नहीं लग पाता है कि गेंद कितनी उछलेंगी। 4 गेंदे और कुल मिलाकर 13 रन। लाइन बहुत अच्छी थी पिछली गेंद पर, ऑफ स्टंप के बाहर रखा था। अक्षय फिर से पटका, एलिवेशन नहीं बना, हवा में शॉट है, लेकिन आफताब की सूझबूझ कैच को नहीं लेने गए और टिप्पा खाने के बाद गेंद को पकड़ा। 2 रन पूरे, 3 गेंदों में 11 रन। ये गेंद अब निर्णायक बन चुकी है। यहां पर मैं कप्तान सूरज जोशी की तारीफ करूंगा। उन्होंने, सुजीत पाटिल थे, कई ऑप्शन थे, लेकिन गेंदबाजी दी अक्षय को। उसका कारण है कि अक्षय विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। परवेज मारूफ की याद ताजा होती हुई श्रीलंका के। कम से कम एक बड़े स्ट्रोक की जरूरत यदि उस्मानिया को जीतना है तो। ये जीतू बीड़ बालाजी को ऑल द बेस्ट कह रहे हैं। बहुत बढ़िया बाउंसर, बढ़िया बाउंसर। 1 इन ओवर का इशारा करते हुए अंपायर, लेकिन बाउंसर क्या था। अब एक ही चारा है, 2 गेंदे और 11 रन। कहीं भी पोजीशन में नहीं थे बल्लेबाज शॉट खेलने के लिए। डायरेक्शन बहुत अच्छा था, ऑफ स्टंप के बाहर तेज किया था। लेकिन तारीफ करूंगा मैं दोनों टीमों की और उस्मानिया की भी। मुकाबला तो अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उस्मानिया ने जो क्रिकेट खेला है वो बहुत देर तक याद रखा जाएगा, एंडलेस। अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहां तो पेशन गोइयां नहीं चलती है, यहां पे चलता है तो सिर्फ मैच चलता है। इस मर्तबा लिफ्ट कर दिया है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 6 रन। और ये तीसरा शॉट है पूरे 25 साल के इतिहास में जो मुझे आके लगा है। पहला तो वैभव का, दूसरा शाहिद खान का, और तीसरा शॉट जयेश का। ठीक, मेरे अगर एक हाथ में माइक नहीं रहता तो जरूर इस कैच को लिया जा सकता था। साहिबा मोमिन ने कैच किया है। कोई तो हेलमेट मंगाओ मेरे लिए, मैं अच्छा फील्डर नहीं हूं। कमेंट्री बॉक्स में आ गई थी गेंद, हाफ वाली, शानदार शॉट। इसीलिए तो कहा, ये देखिए मेरे हाथ से गेंद छिटक गई, और इसीलिए तो मैंने कहा कि मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। क्या गोल्डन 6 मैच जीतेंगी, गोल्डन बाउंड्री मैच बराबरी पे। जीतने के लिए 5 रन चाहिए। अक्षय आखिरी गेंद ड्राइव किया और इसके साथ ही सुपर ओवर, शायद यही सुपर ओवर, इसकी कमी रह गई थी। सुपर ओवर हो चुका है और गोल्डन बाउंड्री लगाई है जयेश ने। उस्मानिया नाम लेने की जरूरत नहीं है, आईसीसी का वो रूल खत्म हुआ है। फील्डिंग साइड फील्डिंग करेंगे, आपको जिसको बल्लेबाजी को भेजना है आप भेज सकते हैं। सुपर ओवर, क्या मुकाबला है, सुपर ओवर। ये देखिए वीरेंद्र चौरगे भी हालांकि वहां पर बहुत खुश है, सुपर ओवर देखने को मिल रहा है। अब जो नहीं हुआ था वो भी हो गया।
और यही नतीजा मुझे लगता है कि सही था इस मैच के लिए, जिस तरह से क्रिकेट दोनों भी टीमों ने खेला था। जयेश की लाजवाब पारी, 30 रन बनाकर नाबाद रहे। सात विकेटों के नुकसान पर 62 रन बनाए थे बालाजी स्पोर्ट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, और वही स्कोर 62 रन 5 विकेटों के नुकसान पर उस्मानिया ने भी बनाया अपने 6 ओवर्स में। नाम नहीं दिए जाते हैं, आईसीसी का वो रूल खत्म हो गया है। आपको जिसको बल्लेबाजी को भेजना है भेजिए, जो गेंदबाज आपको कराना है उससे गेंदबाजी कराइए। फील्डिंग लगाना है वहां पर, नाम की जरूरत नहीं है, फील्डिंग लगाना है। और वाकई में गोल्डन बाउंड्री, दूसरी गोल्डन बाउंड्री बी इंडियन के मिराज ने पहली गोल्डन बाउंड्री लगाई थी। हालांकि फुलटॉस गेंद मिली थी आखिरी गेंद, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा था बैट्समैन का, जयेश का। गैप में उन्होंने ड्राइव कर दिया था, लॉन्ग ऑफ था लेकिन उसके पास अवसर नहीं था। बहुत ही खूबसूरत शॉट, चौका लगाया। रोमांचक मुकाबला। ये देखिए सुपर ओवर हो चुका है और बैट्समैन भेजना है। आइए दोस्तों, पहले सुपर ओवर की कहानी आइए सुनते हैं सुपर कमेंटेटर अजय घरत की जुबानी। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीक भावे तारीफ के लिए। बल्लेबाज आते हुए मैदान में